through glass slab. And 8C students, please settle down quickly, bete. 8C students. First of all, I will tell my students how does this glass slab look like. Glass slab look like this. This is the shape of the glass slab. You can say width is maximum, height is medium, and depth is minimum. This is the kind of glass slab. As it is glass slab, so naturally it is transparent. Transparent. So I am making the magnified view of this glass slab here. Everybody see, teacher has made the glass slab like here. This is your glass slab. Okay. Now on the glass, first of all, you should be aware of the thickness of the glass slab. T is called small t. Thickness of glass slab. If you will label each and everything, then only you will get good marks. Now, from the source of light, S stands for source of light. From the source of light, a ray of light is incident, and ray of light always travel in a straight line direction. What is the name of that property that ray of light travels in the straight line? Rectilinear propagation. RECTI, rectilinear propagation. This property says that ray of light always travel in a straight line. Okay, so from this I have shown the ray of light is coming this way. Okay, look here, straight line. In case had there been no glass slab, from where this ray of light will go? अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो ये रे ऑफ लाइट कहां से गुजर जाती? सभी बच्चे बोलेंगे सर फिर तो रिफ्लेक्शन होएगी ही नहीं. Then it will keep on going in the same straight line. It will keep on going. It will keep on going in the same straight line, sir. So all of say for the non-science person, the person who is not of मैम 8th से बहुत नॉइज आ रही है, प्लीज आप स्टॉप कर दीजिए. 8th के बच्चे. Thank you, ma'am. Thank you. So this is the ray of light, and had there been no glass slab, अगर glass slab ना होती तो ray of light rectilinear propagation से बिल्कुल straight line में ऐसे निकल गई होती. Let me make it even better. Let's make it better.
this ray of light could have gone this way. So for the non-science person, the expected direction, expected path. But everybody knows that when ray of light turns to glass, it comes from rarer medium. At the point of, this is the point P. At the point P point is called point of incidence. Diffraction will take place. घूम क्यों रहे हैं? So at point P, what happens? I will draw a normal. What is normal, bete? Normal is a straight line which is making 90 degree with the refracting edge, 90 degree angle. This upper edge of the glass slab is known as refracting edge. सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. रिफ्रैक्टिंग एज. और ये जो सोर्स से लाइट आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? आई आर. आई आर स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट रे. देखो टीचर सारी बातें लिख रहा है. इंसिडेंट रे. पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटे? पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Point of incidence. Everybody knows when ray of light enters from rarer to denser medium, it bends towards normal as per refraction process. So the ray of light leaving the expected path, it will goes to this side. Okay? देखो इस रास्ते को छोड़ के इससे इधर को बेंड हो गया, डेविएट हो गया. डेविएट रहेगा स्ट्रेट लाइन में. दिस इज योर व्हाट? नॉर्मल. एंड वन मोर थिंग, बाय व्हाट एंगल इट गेट्स डेविएटेड. कितने एंगल से ये झुक गया नॉर्मल की तरफ? दिस ग्रीन एंगल. ग्रीन एंगल इसको डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे. डेल्टा. लुक हियर. Delta is called angle of deviation. Angle of deviation. Deviation word is taken from deviate, expected path और refracted ray. इस रे को क्या बोलते हैं जिस पे टीचर ने आर आर लिखा है? टीचर ने क्या लिखा है बेटे? इसको आर आर. आर आर का मीनिंग है रिफ्रैक्टेड रे. Got it? Now let's mention the angles. जितने ये देखो एंगल, देखो कैसे मेंशन कर रहे हैं टीचर. Angle made by the incident ray with the normal, it should be mentioned as angle of incidence. Next angle, angle made by the ray of light with the refracting edge, this is known as angle of glance. Angle of glance लिख देते हैं. Angle I is equal to angle of incidence. सभी अच्छे बच्चे बना रहे होंगे, उनको पता है कि किसी भी बुक में इतना डिटेल्ड नहीं दिया होगा जो सर करवा देंगे, इसलिए वो अच्छे से नोट करते हैं. शाबाश. और स्मॉल जी का मतलब क्या होगा बेटे? एंगल ऑफ ग्लास. इसको ग्लांसिंग एंगल भी बोल देते हैं. एंगल ऑफ ग्लास और ग्लांसिंग एंगल. ओके. अब नेक्स्ट देखो, जिस एंगल को टीचर येलो कलर से बता रहे हैं, डबल लाइन, येलो कलर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन.
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर का मीनिंग क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गॉट इट। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर, गौर से देखो बेटे, when refracted ray strikes here on the other refracting edge, ये नीचे वाली लाइन को क्या बोलेंगे, ग्लास स्लैब के बॉटम को क्या बोलेंगे, लोअर रिफ्रैक्टिंग एज, लोअर रिफ्रैक्टिंग एज, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अपर रिफ्रैक्टिंग एज, अपर रिफ्रैक्टिंग एज। Now the light is coming from denser medium to rarer medium, क्योंकि बॉटम पे क्या है, यहाँ पर एयर है और ये अंदर क्या है, कांच है, ग्लास। We will draw the normal at point of incidence, ये टीचर ने नॉर्मल दिखाया। How can I say it is normal? Because it is making 90-degree angle. It should be mentioned as NL. NL means normal. Now the ray of light, as it is entering from denser to rarer, it will go away from normal. नॉर्मल से दूर को हट जाएगी, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन छोड़ के दूर को। ये देखो मैंने दूर को हटा दी। कोई बच्चा कहेगा सर ये बाहर को मुड़ गई, यस, बिकॉज इट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जब पहले वाले केस में रेयरर टू डेंसर था तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और बाद वाले केस में जब डेंसर टू रेयरर है अवे फ्रॉम नॉर्मल। सभी बच्चे याद रखेंगे इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, जिसको टीचर डबल लाइन ट्रिपल लाइन से शो कर रहे हैं, ट्रिपल लाइन से, इसको बोलते हैं स्मॉल ई। इसका नाम होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। स्मॉल ई का मतलब बेटे एंगल ऑफ इमर्जेंस, EMERGENCE, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, और जिस लाइन पे टीचर ER लिख रहे हैं, ER, उसका मतलब क्या होता है, इमर्जेंट रे। ER का क्या मतलब है, यहां पर लिख देते हैं, ER स्टैंड्स फॉर इमर्जेंट रे। और खास बात, सारे बच्चे ध्यान से सुने, ये जो डॉटेड पाथ था और जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब होता है उनमें गैप सेम स्ट्रेट लाइन में है। देखो फिर से बता दो, इसको थोड़ा सा हम सेट भी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से पैरेलल बनाते हैं। लेट मी मेक इट बेटर पैरेलल। देखो अब ये बिल्कुल पैरेलल लग रहा है बेटे, ये पैरेलल लाइन जा रही है, इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। याद रहे इमर्जेंट रे और एक्सपेक्टेड पाथ दोनों पैरेलल होते हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब बराबर की दूरी बनाते हुए जाते हैं। इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर गैप होता है यहां से लेकर यहां तक, परपेंडिकुलर गैप बिटवीन दी पैरेलल लाइंस, इसको स्मॉल डी से लिखते हैं, स्मॉल डी से। सभी बच्चे इसका नाम नोट करें, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब है साइड वाइज शिफ्टिंग होनी। लाइट यहां से जाती, अगर ग्लास स्लैब ना होती, और उधर से शिफ्ट होकर साइड वाइज इतना इधर को आ गई, ऐसे निकल गई, जाएगी उसी डायरेक्शन में, लेकिन इधर को साइड वाइज शिफ्टिंग होगी। साइड वाइज शिफ्टिंग का मतलब लेटरल शिफ्ट। जो बच्चा इतना पूरा लेबल करके डायग्राम बनाएगा, कौन से आर्टिकल की, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, उसको एग्जाम में पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे।
लेबलिंग के साथ 3 मार्क्स रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। जल्दी से बना लो, जल्दी से, कुछ भी आपको पता ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना बनाया। और इसमें एक चीज और मेंशन कर देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ग्लास दोनों का टोटल हमेशा 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ग्लास 90 डिग्री। गॉट इट बेटे। और एक बात सुनो, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आर इक्वल। ये है आपकी कंप्लीट नॉलेज। मेरे को ऐसा कभी अच्छा नहीं लगता कि बच्चे को थोड़ी सी चीज बता दो, थोड़ी सी ना बताओ, वो नहीं अच्छा लगता। मैं जब बताता हूँ पूरा बता देता। ठीक है। अब यकीन मानो, अगर आप ये पेपर में 3 मार्क्स का आ गया और आपको इसमें से 70% भी याद रह गया, 30% आप भूल गए, 70% याद रह गया लेबलिंग में, तो भी टीचर को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। क्योंकि वो बोलेगा 8वीं का बच्चा इतनी बढ़िया लेबलिंग कर रहा है, कमाल ही हो गया। तो भी उसको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। इसलिए अच्छे से डायग्राम बना लो। जिन बच्चों को ये समझ आ गया सारा, वो टीचर को फीडबैक देंगे। प्लीज रेज योर हैंड, राइट हैंड, इन केस यू हैव अंडरस्टूड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी फीडबैक है बेटे। और ये डायग्राम एक बार में याद नहीं होएगा, घर जाकर आपने दोबारा भी यूट्यूब पे देखना। मैं इसमें और ज्यादा चीजें भी बता सकता हूं, लेकिन दैट विल बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी आप बच्चे हो, इससे ज्यादा नहीं बताना चाहिए। सो मैं इसको मेमोरी में डाल रहा हूं। अब देखें किस बच्चे का मेमोरी अच्छा है। कौन बच्चा बताएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कौन से कलर से बनाया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से कलर से बनाया था? देखिए किसकी मेमोरी अच्छी। एंगल ऑफ इंसिडेंस की मेंशनिंग कौन से कलर से की थी? अरे कोई नहीं बता पा रहा। चलो दोबारा देखते हैं डायग्राम। एक बार अच्छे से देख लो, मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से देख लो। नहीं इसको मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में देखते हैं 8th ए जीतती है या 8th बी जीतती है। पूरी डायग्राम अच्छे से देखो। I will mention later on, I will ask one question. Competition between 8th A and 8th B. Okay, now I am asking one question. मैं इसको मेमोरी में डाला। कौन बच्चा बताएगा कौन से दो एंगल मैंने आपस में इक्वल करे थे? एंगल ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। शाबाश, 8th ए विनर हुआ। 8th ए ने बताया विनर। 8th ए बताया। एक क्वेश्चन और, एक कंपटीशन और मौका देते हैं 8th बी को, देखते हैं ड्रा करती है या 8th ए जीत जाती है। 8th बी के पास ड्रा करने का मौका। एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, बस एक ही क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि टीचर ने, एक मिनट डायरेक्टर साहब आए प्लीज। बेटा एक मिनट।
Sir, your voice is not audible. अब टीचर कह रहे हैं जब टीचर ने नॉर्मल ड्रा करा था लोअर एज पे नॉर्मल ड्रा करा था ग्लास स्लैब के, वो कौन से कलर का था? हाँ जी, कौन से कलर का था? Sir, white. व्हाइट कह रहे हो, व्हाइट कह रहे हो? नहीं बेटे नहीं। Sir, purple. पर्पल। एट ने आंसर सही दिया, ड्रा हो गया मैच, ड्रा हो गया, वेरी गुड। एक और दोबारा देखते हैं। ठीक है, इतनी गहराई से देखना होता है कि फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाए, राइट? चलो अब हम पढ़ेंगे, शाबाश सभी बच्चे, अब हम पढ़ते हैं बेटे। जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप आसानी से आपके पास हो जाएंगे, असाइनमेंट वाले बैक साइड पर बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ओके, अब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, सभी बच्चे ध्यान से सुने, मैंने बहुत सारी बातें बता देंगी। नंबर 1 लर्निंग पॉइंट, नंबर 1 बेटे, अगर हम यहां पर व्हाइट रे ऑफ लाइट थ्रो करें, कौन सी बेटे? व्हाइट रे ऑफ लाइट किसके ऊपर थ्रो करनी है? जिस डिवाइस पे इसको थ्रो करना है उसका नाम होता है प्रिज्म, PRISM, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? कांच का एक टुकड़ा होता है प्रिज्म, जिसमें 2 ट्रायंगुलर फेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसिस होते हैं, 5 फेसिस होते हैं टोटल। मैं इसको दिखाता हूं साइड पे, ऐसा होता है, देखो ये हो गया ट्रायंगुलर फेस, दिस इज अनदर ट्रायंगुलर फेस, और हम यहां से देखो ये एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया उस तरफ वाला, और ये रेक्टेंगुलर फेस हो गया फ्रंट वाला, और एक बेस वाला। तो प्रिज्म इज ए glass, a symmetrical glass piece of 2 triangular faces and 3 rectangular faces। ठीक है, ये प्रिज्म का डेफिनेशन। ओके, ये किस चीज का बना होता है? किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का हो सकता है, नॉट नेसेसरीली ऑफ द ग्लास। हाँ, कांच बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। तीसरी बात, जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में से जाती है तो ये व्हाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूटिंग कलर्स में ब्रेकअप हो जाती है, 7 कंस्टिट्यूटिंग कलर्स। ओके, तो वो जो 7 कंस्टिट्यूटिंग कलर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स, ये जो 7 कंस्टिट्यूटिंग कलर्स में स्प्लिट अप होती है। अगर कोई बच्चा पूछे इसका रूट काज क्या है, व्हाई इट गेट्स स्प्लिट अप, रूट काज क्या है, व्हाइट कलर 7 कलरों में क्यों टूटती है, तो सभी बच्चों ने बताना है इसका कारण होता है डिस्पर्श, सॉरी, इसका कारण लिखना है आपने सभी बच्चे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ओके, सभी बच्चे क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन। ओके, और एक बात और लिखेंगे, अलग अलग कलर्स का एंगल ऑफ इमर्जेंस डिफरेंट होता है। एंगल ऑफ इमर्जेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। ओके, अब ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं बेटे? लेट मी टेल यू, देखो ध्यान से सुनो, मैं उनके पूरे नाम नहीं लिखूंगा। ये 7 कलर्स जो यहाँ पर होते हैं उनको मैं लिख रहा हूं, और उसके स्पेलिंग देखो, नीचे से ऊपर को लिख रहा हूं, नीचे से ऊपर को। विबग्योर, इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो 7 कलर्स में व्हाइट लाइट स्प्लिट करती है, कुदरत ने हमें प्रूफ दे दिया कि इन 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही व्हाइट लाइट बनती है। इस पूरी प्रोसेस को डिस्पर्शन बोलते हैं। और इसके नीचे रूट काज क्या होते हैं, ये 2 पॉइंट। रिफ्रैक्शन सभी कलर्स की और सभी का एंगल ऑफ इमर्जेंस अलग अलग होता है। तो डेफिनेशन, dispersion is the process of splitting of white light into 7 constituting colors. कितने बेटे? 7 constituting colors after it passes through prism is called dispersion. ये प्रिज्म देखने में ऐसा होता है, सभी बच्चे देखो, ये देखने में ऐसा होता है बेटे प्रिज्म। टीचर आपको दिखा रहे हैं, मैं और ज्यादा नजदीक करके दिखाता हूँ। ये देखो प्रिज्म ऐसा होता है, देखो ये ट्रायंगुलर फेस और बैक साइड पे भी ट्रायंगुलर फेस, ये रेक्टेंगुलर फेस, बॉटम पे भी रेक्टेंगुलर फेस और एक और रेक्टेंगुलर फेस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 ट्रायंगुलर फेस। ओके, अब इसको समझाते हैं हम आगे। कोई बच्चा क्या बोलता है मेरे को, सर प्रिज्म के अंदर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो तो मेरे को समझ में नहीं आया, वो क्या? तो ध्यान से सुनो। मान लीजिए मान लीजिए इधर देखो, आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझना चाहिए। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ध्यान से सुनो क्या होता है बेटे। मैंने ये प्रिज्म लिया और इसके ऊपर मान लीजिए मैंने इस पे रेड कलर का लाइट थ्रो करा, रेड का। याद रहे डिस्पर्शन तभी होगी जब व्हाइट लाइट थ्रो करी। अकेली व्हाइट लाइट से डिस्पर्शन होती है, और किसी भी कलर की लाइट आप थ्रो कर दोगे इधर डिस्पर्शन नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं रेड लाइट दिखा रहा हूं तो उधर रेड ही बाहर आ जाएगी, नो डिस्पर्शन। तो टीचर क्यों दिखा रहे हैं इसको सोर्स ऑफ लाइट से? ताकि मेरे बच्चों को इमरजेंस समझ आ जाए, एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रेड लाइट इट वुड हैव गॉन इन द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ओके, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहां से ये एयर से कांच में जा रही है लाइट, एयर से कांच में, मीनिंग रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर क्या होता है बेटे? यहां मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा और ये अपना डॉटेड पाथ छोड़कर ग्रीन वाले नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी लाइट, ये झुका दी हम। ओके, अब यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टीचर ने फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करा येलो कलर से। अब ये लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ये गई। अब मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, यहां पर ये जो टीचर व्हाइट कलर से एंगल शो कर रहे हैं नॉर्मल के साथ, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। और जो एंगल टीचर येलो कलर से शो कर रहे हैं उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन लिखना है इसको। और स्मॉल ई को क्या लिखना है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल ऑफ इमरजेंस 7 कलर्स का अलग अलग होता है। अगर हम प्रिज्म के ऊपर यहाँ रेड लाइट की बजाय व्हाइट लाइट थ्रो करते हैं तो 7 कलर अलग अलग एंगल से दिखते हैं। सबसे ज्यादा एंगल कौन सा दिखाता है, वायलेट। सबसे कम एंगल कौन सा दिखाता है, रेड। ओके, तो इसलिए ये 7 कलरों में टूटा हुआ दिखता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। व्हाट इट, इसका रूट काज क्या है, ये 2 पॉइंट।
रिफ्रैक्शन की प्रोसेस देखो, रिफ्रैक्शन कैसे, ये देखो डेंसर से रेयर हो गया, एक रिफ्रैक्शन यहाँ हुई, एक यहाँ हुई, डबल डबल रिफ्रैक्शन हुई। अब असाइनमेंट करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे ह्यूमन आई के ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछे, टीचर ने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझाने के लिए कौन से कलर की रे ऑफ लाइट यूज करी थी? टीचर ने इधर रेड रेड। और जब भी कभी आपको लेबोरेटरी में ऑप्टिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना हो तो रेड कलर ही यूज करना है, रेड लाइट, क्योंकि वो कम से कम बिखरती है, आपके एक्सपेरिमेंटल डाटा में ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। अगर एक ही कलर की लाइट यूज करनी पड़े तो रेड यूज करनी है, अगली सारी 4-5 क्लासें जो भी पढ़नी है आप, ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ये है हमारा हेडिंग, और ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसको मैं क्वेश्चन आंसरों के रूप में पूछता हूं और बताता हूं, और साथ ही साथ आपका कंपटीशन भी है, देखते हैं दोनों क्लासों में कौन जीतता है। नंबर 1 लर्निंग पॉइंट, नंबर 1, शाबाश। कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि कॉन्स क्या होते हैं? कॉन्स, व्हाट इज कॉन्स? 8th ए और बी कंपटीशन, व्हाट इज कॉन्स? ओ, अब मैं आपको बताऊं इसका आंसर, ए सेक्शन बी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन दे सका? 8th ए नहीं दे सका, 8th बी नहीं दे सका। 10 मिनट हो रहे, 10 बजे तक, ओके। अब बेटे ध्यान से सुनो, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं टीचर, आपकी जो ह्यूमन आई होती है उसके यहाँ फ्रंट पे तो लेंस होता है, आपको पता है, और बिल्कुल बैक साइड पर जो स्क्रीन का काम करती है, स्क्रीन का, वो होता है रेटिना। रेटिना ये क्या है? आई बॉल। ये सर्कल नहीं होती, सफियर होती है, सफियर। ये क्वाइन जैसा गोल नहीं होती, बॉल जैसा गोल होती है, बॉल जैसा, गेंद की तरह, रेटिना। इस रेटिना के ऊपर दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं? विच कैन डिटेक्ट द इमेज विच आर सेंसिटिव टू द लाइट। जो रेटिना के ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे ही लाइट पड़ती है वो जागृत हो जाते हैं, एकदम से मैसेज को रिसीव करते हैं। ऐसे सेल्स को फोटो सेंसिटिव सेल्स बोलते हैं। क्या वर्ड बोला टीचर ने? फोटो सेंसिटिव सेल्स। इन फोटो सेंसिटिव सेल्स की 2 टाइप्स होती है, एक टाइप होती है कॉन्स और दूसरी टाइप होती है रॉड्स। अब आपके टीचर ने पूछा था कॉन्स क्या होते हैं, जो आप आंसर नहीं दे पाए। एवरीबॉडी लिसन, ध्यान से देखो, मेरे पास ये एक रिमोट है, राइट। अब इस रिमोट के अंदर डिफरेंट कलर हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। मैं पास से दिखाता हूं, गौर से देखो। थोड़ा बहुत दिखते होंगे, डिफरेंट कलर्स समझ लो बस। कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसको आंख के सामने रखा,
इसका इमेज रेटिना पे बना, लेकिन इसके अंदर ये डिफरेंट कलर्स हैं, ये कैसे पता लगता है? तो डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं उनको कॉन्स बोलते हैं, कॉन्स, राइट। इन्हीं की वजह से इंसान की जो नजर है, विजन है, उसको हम बोलते हैं कलर्ड विजन। कलर्ड विजन होती है ह्यूमन आई। तो आपने सी से सी याद रखना, मेमोरी टूल। जो कोन्स होते हैं वो कलर्ड विजन देखने में मदद करते हैं, कलर्स को डिटेक्ट करते हैं। देखो सी मैंने कॉमन कर दिया दोनों का, मेमोरी टूल बोलना नहीं है, कॉन्स कलर्ड विजन देखने में मदद करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, रेटिना के अंदर जो सेकंड फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स, वो क्या करते हैं? एनीबॉडी, वो क्या करते हैं? 8th ए में एक बच्चा आंसर देने की कोशिश कर रहा है, 8th ए में, 8th बी में। शाबाश, आ जाओ माइक पे बताओ ना, फिर देखो कंपटीशन भी चल रहा है साइड पे। They are sensitive to light and they send the images to the brain. नॉट करेक्ट आंसर। सेंसिटिव तो मैंने ही बता दिया, ये भी सेंसिटिव है, ये भी सेंसिटिव है, दोनों में फर्क क्या हुआ फिर? And they produce impulses. बेटे तो वो सेंसिटिव है ना, नॉट करेक्ट। बैठो, आपने ह्यूमन आई का आर्टिकल आपने पढ़ा हुआ है, नो डाउट, लेकिन आप किसी और ऑर्गन के बारे में आंसर दे दिया। सो 8th बी में एक बच्चा डेयरिंग था, बड़े अच्छे से बोला, आवाज बड़ी अच्छी थी, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी थी, लेकिन आंसर सही नहीं दिया। 8th बी में, 8th ए में कोई बच्चा नहीं, तो 8th ए में कोई बच्चा आंसर नहीं दे सका, बिग क्रॉस। 8th बी में एक बच्चे ने कोशिश तो करी, फिर भी स्मॉल क्रॉस। अब सुनो बेटे, अगर एक ही कलर में अलग अलग शेड हो, क्या वो रेड कलर ईंट के जैसा रेड है, डल रेड? क्या वो एप्पल के जैसा रेड है, थोड़ा सा ब्राइट रेड? क्या वो लेडीज की जो लिपस्टिक लगाने वाला रंग होता है, चमकदार सुर्ख लाल, क्रिम्सन रेड? एक ही कलर में अलग अलग शेड होते हैं, जो उनके बारे में जो मदद करे वो होते हैं कोन्स, रोड्स, सॉरी। शेड्स को डिटेक्ट करता है विद इन सेम कलर। अब आपको मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जितने भी, चाहे वो जमीन पे रहने वाले लैंड एनिमल्स, चाहे एक्वाटिक एनिमल्स पानी वाले, चाहे पक्षी परिंदे हों जैसे, इन सभी में भगवान जी ने रॉड्स को तो बहुत अच्छी तरह से दिया, वेरी गुड। कहीं कहीं पर तो रॉड्स ह्यूमन आई से भी बेटर दिए, लेकिन जो कॉन्स हैं वो एनिमल्स को दिए ही नहीं, कॉन्स दिए नहीं एनिमल्स को, या फिर ना के मात्र दिए, मामूली से। जैसे जैसे जो फिश होती है, फिश, FISH, फिश, वो फिश ब्लैक एंड व्हाइट देख सकती है और थोड़ा बहुत येलो कलर देख लेती है, थोड़ा बहुत येलो कलर, ओके। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उनमें रॉड्स होती हैं, कॉन्स नहीं होते हैं, तो एनिमल्स की जो आई साइट है, विजन है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोम विजन, मोनोक्रोम विजन। ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं, बस ब्लैक एंड व्हाइट में, ओके। सिर्फ दो जीव ऐसे हैं जो कलर्ड देख सकते हैं, दो जीव, जानते हो कौन से? दो जीव जो कलर्ड विजन रखते हैं, कलर्ड विजन रखने वाले दो ही जीव बनाए हैं भगवान जी ने, फुली डेवलप्ड कलर्ड विजन। एक तो होता है इंसान,
ह्यूमन। कौन बच्चा बताएगा तीसरा बात? कौन बताएगा थर्ड क्वेश्चन? There is only one animal which has as good eyes as human beings. लगभग ह्यूमन आइज के बराबर, थोड़ा बहुत कम कह लो। कौन सा जानवर है? Monkey. मंकी नो, Dog. डॉग नो। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने नहीं दिया। क्रॉस क्रॉस। और ये होता है चिंपांजी। चिंपांजी बेटे, तो ये चिंपांजी और ह्यूमन भी। लेकिन चिंपांजी को इतना बढ़िया आईसाइट क्यों दिया भगवान जी ने? अभी तक साइंटिस्टों को इसका पता नहीं। वो सोचता है क्यों दिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, चिंपांजी का जो ब्रेन होता है ना, वो भी एक 3-4 साल के बच्चे के ब्रेन के बराबर होता है। अगर इसको चाबियों का गुच्छा दे दिया जाए तो, और उसके सामने लॉक खोला जाए चाबी बदल बदल के, तो ये सीख जाता है, खुद लॉक खोलना सीख लेता है चाबी निकाल के, सही वाली चाबी से। बस इतनी समझ होती है इसकी। लेकिन इसकी आंखें हमारे बराबर होती है। ठीक है बेटे, अब हम इसी तरह से क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा बताता है। 2 क्वेश्चन हो गए। ह्यूमन आई हम पढ़ भी रहे हैं। कौन बच्चा बताएगा आंख के अंदर एक ये पोर्शन होता है, इसका क्या काम है? IRIS, आइरिस। क्वेश्चन टू 8th A as well as B। Colored part. नहीं, माइक पे आकर बताओ, माइक पे आजा बेटे। Colored part. 8th B में एक बच्चा है। Colored part. Colored part of the eye. एक मिनट पहले 8th A से पूछ ले। हाँ बताओ। It is colored part. हाँ बोलो बोलो। It is colored part. ओके, आप भी बताओ बेटे। It is color part of the eye and it's increase or decrease the pupil size. बहुत अच्छे। और 8th B को तो मिलेंगे फुल मार्क्स। 8th A जाओ, आप बैठो। 8th A बता सकते हैं? 8th A में 60 बच्चे बैठे हैं, 8th A में एक भी नहीं बता रहा। सो दिस स्कोर गोज टू 8th B, और 8th नहीं बता सका। और मैं बताना चाहूंगा 8th B ने सही ही नहीं दिया, बल्कि बिल्कुल सही आंसर दिया। आइरिस के 2 काम होते हैं, दोनों सही बताए इस क्लास में। मजा आ गया। क्लैप क्लैप फॉर 8th B। अब इसको सुन लो, शाबाश बेटे। जो हमारा ये आई लेंस होता है ना, आई लेंस, राइट, योर अटेंशन। ये जो हमारा यहां से लाइट निकलती है, लेंस, ये तो लेंस है। लेंस के आगे क्या होता है? ध्यान से सुन, बाहर की तरफ ये एक काला गोला दिखता है, जिसको आप हिंदी में पुतली देख बोलते हो। ये चीज जो है ना, ये आइरिस है। ओके। और काले गोले के अंदर भी एक गोला होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ये अंदर वाला क्या है? प्यूपिल। प्यूपिल में से लाइट जाती है, एंटर करती है। प्यूपिल में से लाइट एंटर करती है आंख में। लेकिन ये लाइट ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, उसको कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस। कोई बच्चा बोलेगा सर इस लाइट को कंट्रोल करने का क्या मतलब? ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये प्यूपिल है, राइट, और जो मेरी फिंगर्स है ये आइरिस है, ये इसके इर्द गिर्द है। ये इसको जब ऐसे ढक लेंगी आगे से, तो ओपनिंग एरिया ऑफ द प्यूपिल कम हो गया, लाइट कम जाएगी। जब ये आइरिस के बाल नुमा स्ट्रक्चर दूर दूर हो जाएंगी प्रोजेक्शंस, तो ओपनिंग एरिया ज्यादा हो गया, तो ज्यादा लाइट जाएगी। जब हम डिम लाइट में देखते हैं,
मान लीजिए मेरा 500 रुपए का नोट गिर गया, जिस कमरे में गिरा उधर डिम लाइट है, तो मैं तो 500 रुपए को ऐसे ऐसे ढूंढूंगा, फिर भी मेरे पैसे ना गिर गए, कहाँ गिर गए। तो उस वक्त डिम लाइट में मेरा प्यूपिल पूरा खुल जाएगा ताकि मैक्सिमम लाइट जाए। ओके, ऐसे आइरिस पीछे को हो जाएगा। और मान लीजिए ऐसे मैं सड़क पे जा रहा था और अचानक से सामने वाले ट्रक की रात के वक्त हेडलाइट ऑन होगी, तो एकदम से ज्यादा लाइट आई हेडलाइट से ट्रक के, तो मेरी आंख के अंदर अननेसेसरी ग्लेयर पैदा हो जाएगी, चकाचौंध। उसको कम करने के लिए मैं चाहूंगा मेरी लाइट में, आंख में लाइट ही कम जाए, तो मैं इस मेरी आइरिस उसको ढक देगी। दे विल लेसन द ओपनिंग एरिया ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल का लाइट के लिए ओपनिंग एरिया कम हो जाएगा, तो कम लाइट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कभी इसको ढक देते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं आइरिस। तो एक तो आंख में जाने वाली लाइट की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है आइरिस। दूसरा, ये आंख को, पहला काम क्या क्या हो गया बेटे, रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ ही लाइट एंटरिंग आई। दूसरी बात, ये जो आइरिस है, इस ये आंख को कलर देता है। कौन से 5 मेन कलर होते हैं आंख के? 5 मेन कलर कौन बताएगा आंख के? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th बी बराबर कर पाता है कि नहीं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस गिव्स 5 मेन कलर्स टू द आई इन डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। आ जाओ बेटे, माइक पे आ जाओ। 8th ए का बच्चा डेयरिंग है, शाबाश शाबाश, ड्रा करो, हारना नहीं है बी सेक्शन से। जल्दी आओ जल्दी आओ, 1 मिनट आ रहा है एक बच्चा। blue, black, blue, black, brown, यस, green, gray. वेरी गुड वेरी गुड। तो ए सेक्शन ने मैच ड्रा करा, पहले आंसर दे दिया, बी को चाहे आता भी हो बाद में, तो बाद में कोई मतलब नहीं। तो इसके 5 कलर आपने याद रखने हैं बेटे, सभी बच्चे याद रखें। पी का क्यूब, जी का स्क्वायर, मेमोरी टूल। बी का क्यूब, जी का स्क्वायर, मतलब क्यूब का मतलब बी से 3 कलर, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, और जी से 2 कलर, ग्रीन, ग्रे। नोट कर लो, मेमोरी टूल याद रखना, बी क्यूब, जी स्क्वायर। ओके, लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक स्कोर क्या है? ए सेक्शन का 1 स्कोर, बी सेक्शन का 20 स्कोर। ओके, so let's proceed further. ए सेक्शन का 1 स्कोर है, बी सेक्शन का 1 स्कोर है अभी तक। आगे देखते हैं क्या बनता है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी बच्चों को पता होगा ये आई लेंस है, और यहां से ये जो एक नर्व होती है, रेटिना पे बने हुए इमेज को ब्रेन की तरफ लेके जाती है। इस नर्व का नाम होता है ऑप्टिक नर्व। लेकिन ये क्वेश्चंस में नहीं है, मैंने पूछा ही नहीं क्वेश्चन, ये तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, फिर भी आपने जवाब दिया, बड़ा अच्छा। मार्क्स उसके मिलेंगे जिसके क्वेश्चंस पूछा जाए। ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब याद रहे, आंख के आगे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसके अंदर मेन मैक्सिमम रिफ्रैक्शन इसी में होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर में। कॉर्निया बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये जो लेंस होता है, इसकी नेचर कौन सी होती है? कॉन्वेक्स। और ये अल्ट्रा क्लियर लेंस होता है, अल्ट्रा क्लियर, इसको बोलते हैं अल्ट्रा क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस, ओके। आप ध्यान से सुनो, इस लेंस की सफाई होती रहे,
इसकी सफाई होती रहे, इसकी ट्रांसपेरेंसी कायम रहे, यहाँ पर कुदरत ने एक लिक्विड छोड़ रखा होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, एक्वस ह्यूमर। एक लिक्विड आंख की गेंद के अंदर भी होता है, विट्रस ह्यूमर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस ह्यूमर का काम आपको टीचर ने बता दिया। कौन बच्चा मेरे को बताएगा जो आंख आई बॉल के अंदर विट्रस ह्यूमर है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, उसका काम क्या है, व्हाट इज द जॉब? 8th बी में एक बच्चा, आजा आजा जल्दी आजा। 8th बी में एक बच्चा, 9 बैठ गया, वो भी बैठ गया बच्चा। 8th ए में यार 120 बच्चों के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। व्हाट इज द जॉब ऑफ विट्रस ह्यूमर ट्रांसपेरेंट लिक्विड filled in the eye class eyeball? देखो जब हम क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ते हैं ना किस किस आर्टिकल को, जो हमें लगता है कि वो आता है, जब उसको क्वेश्चन आंसरों के रूप में पढ़ते हैं तब हमें असली पता लगता है कि कितना का। तो इसका आंसर दोनों बच्चे नहीं दे सके। सुनो ध्यान से, विट्रस ह्यूमर के दो काम हैं, 2 जॉब्स। पहला, जब इसमें से लाइट आ रही होती है लेंस में से निकल के रेटिना की तरफ, अगर ये विट्रस ह्यूमर ना हो तो ये लाइट जाते जाते ऐसे बिखर जाएगी। ऐसे देखो, यहां से कम चौड़ी है, यहां से ज्यादा चौड़ी, बिखराव ज्यादा हो जाएगा उस विट्रस ह्यूमर के थ्रू। जब लाइट जाती है तो वो ना के बराबर बिखरती है। देखो लगभग उतनी चौड़ी यहां पर, उतनी चौड़ी लेंस से निकले रेटिना तक जाने के लिए आंख के अंदर जो लाइट का स्कैटर होना है, स्कैटर हो जाना है, उस स्कैटरिंग को बहुत रिड्यूस कर देता है, ऐसे लगभग पैरेलल बीम भी बना देता है। कौन? विट्रस ह्यूमर ट्रांसपेरेंट लिक्विड। पहला काम। दूसरा काम, अगर ये विट्रस ह्यूमर ना हो, जो हमारी सॉफ्ट आई है उसकी बाहर से ये जो स्ट्रक्चर है ये सिक्वीज हो सकती है, सिक्वीज। बाहर वाले प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए अंदर से एक प्रेशर बना के रखता है ये लिक्विड, जिससे इस आंख की जो शेप है पूरी गेंद नुमा बनी रहती है। इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को कंपनसेट करके आंख की शेप को स्फेरिकल शेप दिए रखता है पूरी उम्र। और आंख, इंसान की आंख में अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसकी साइज जन्म से लेकर डेथ तक वही रहती है। कभी आंख बड़ी नहीं होती, छोटी नहीं होती, उतना ही रहता है जन्म से लेकर डेथ तक, अकेला ऑर्गन। और 2 ऑर्गन ऐसे हैं जिनका साइज हमेशा बढ़ता रहता है। इसीलिए ये जो 2 ऑर्गन मैं बताने लगा हूं, इसीलिए इंसान जितना यंग एज में हैंडसम लगता है उतना वो अधेड़ उम्र में नहीं अच्छा लगता। कौन से 2 ऑर्गन? नाक और कान। ये 2 ऑर्गन का साइज लगातार पूरी उम्र बढ़ता रहता है। बाकी ऑर्गन्स जन्म से लेकर यंग एज तक बढ़ते हैं, लेकिन आंख का साइज जितना बचपन में होता है जन्म के वक्त उतना ही डेथ के वक्त। तो ये इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रखते हुए आंख की बॉल को स्फेरिकल शेप इंटैक्ट रखता है। इंटैक्ट मैंने कायम रखना। और स्कैटरिंग को मिनिमाइज करके आंख में जाने वाली लाइट को पैरेलल बीम ही बनाए रखता है। ये 2 काम है इसके।
अच्छे से पढ़ते नहीं आप, किताबों में पता नहीं कहाँ क्या पढ़ते। अब टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा है, ध्यान से सुनना, आप देखते हैं कौन सी क्लास आगे निकलती है। पहले मैं एक बात बताऊंगा, यहां पर जहां पर ये ऑप्टिक नर्व रेटिना से जुड़ती है, यहां पर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर रेटिना होता ही नहीं। अगर वहां पर किसी चीज का इमेज बन जाए तो उसका मैसेज ब्रेन को जाएगा ही नहीं, ब्रेन उसको देखेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर सारी नाड़ियां मुड़ के ऐसे जा रही होती हैं ऑप्टिक नर्व में रेटिना से चल के, तो वहां पर रेटिना की स्क्रीन होती ही नहीं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये तो मैंने बता दिया आपको ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के ऊपर एक खास स्पॉट और होता है, उसका नाम क्या होता है और उसका काम क्या है? दिस इज माय नेम। एक स्पॉट तो मैंने बता दिया, ब्लाइंड स्पॉट। नहीं नहीं, माइक पे आके बताओ जिसमें हिम्मत है। ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क? नो, रॉन्ग, नो सच पॉइंट। फोबिया सेट। यस, एट्थ ए जीत गया, एट्थ ए जीत गया, वेरी गुड बेटे। इस पॉइंट का नाम होता है मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। इसका नाम है सेंट्राफोबिया। सेंट्राफोबिया है ना। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे तो येलो स्पॉट भी बोल सकते। ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपकी क्लास में मैंने रोल नंबर 10 वाले बच्चे को बोला बेटे प्लीज स्टैंड अप, बच्चा खड़ा हो गया, तो मैं उस रोल नंबर 10 से बात कर रहा हूं, तो वेयर माई आईज आर प्राइमरीली फोकस्ड, माई आईज आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द फेस ऑफ बॉय हुज रोल नंबर इज 10, तो मैं उससे बात कर रहा हूं, तो उसके फेस का जो इमेज बनेगा रेटिना के जिस पॉइंट पर बनेगा, वो वाला पॉइंट मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट सेंट्राफोबिया होगा। लेकिन जब मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूं तो इट डज नॉट मीन मेरे को साइडों पर बैठे हुए बच्चे दिख नहीं रहे, वो भी दिख रहे हैं, उनका इमेज भी बन रहा है, पर उन सारे बच्चों का इमेज सेंट्राफोबिया पर नहीं बनेगा, उसके आसपास बनेगा, उसके आसपास। सेंट्राफोबिया के ऊपर उस चीज का इमेज बनता है जिस चीज के ऊपर इंसान की आंखें प्राइमरीली फोकस्ड होती हैं। गॉट इट? और ये मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। जब एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, सचिन जी हैं, विराट जी हैं, अच्छे अच्छे बैट्समैन, तो इनका काम होता है कि अपनी आंख को बॉल पे एडजस्ट करके बॉल का जो इमेज है सेंट्राफोबिया पे बने, क्लियर दिखे, फिर वो शॉट लगाते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े बैट्समैन भी सचिन जैसे, विराट जैसे ये नहीं कह सकते कि हम आउट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी बॉल का इमेज यहां बन जाएगा ब्लाइंड स्पॉट पर। जैसे ही ब्लाइंड स्पॉट पे बना, वो बॉल उसको थोड़ी देर के लिए लेट हो गए देखने में, फिर एडजस्ट भी करते हैं, नहीं इतने में लेट हो गए, बैट का शॉट गलत लगा, कैच उठ गया, आउट हो गए। अच्छे से अच्छा बैट्समैन ये क्लेम नहीं कर सकता आई विल नॉट गेट आउट। ओके, उनका काम होता है बॉल का इमेज हमेशा सेंट्राफोबिया पे करना, अपनी नेक को, गर्दन को, आंख को एडजस्ट करके बॉल का इमेज कहां बने, सेंट्राफोबिया पे, ताकि जब वो शॉट लगाए, कवर ड्राइव, फुल शॉट, तो वो बहुत अच्छे अच्छे लगे। गॉट इट? तो बेटे हमारा ये जो असाइनमेंट है ये हमारा रह गया। एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा बस, फिर हम बंद करूंगा। एक छोटा सा पॉइंट, शाबाश। याद रहे ए सेक्शन लीड कर रहा है, बी सेक्शन थोड़ा पीछे रह गया। क्वेश्चन, जो ये लेंस है ह्यूमन आई का लेंस, इसकी साइडों पर दो मसल्स होते हैं दोनों तरफ,
उनका नाम क्या होता है? एनीबॉडी? क्या बात है, 8 थे। सिलियरी मसल्स। इस सिलियरी मसल्स का काम सुन लो, ध्यान से सुन लो। आपको लगता है सर हमें पता है, लेकिन अच्छे से सुनना, फिर आपको सुनने के बाद पता लगेगा कि नहीं पता। योर अटेंशन। जब ये सिलियरी मसल इस लेंस को दोनों तरफ से कंप्रेस कर देते हैं, इधर से दबाव डालते हैं, इधर से दबाव डाल देते हैं, तब ये लेंस सेंटर से ज्यादा मोटा हो जाता है। जब लेंस ज्यादा मोटा होता है तब ये लेंस, आंख हमारी उस वक्त नजदीक की चीजों पर फोकस होती है। जैसे मैं ये असाइनमेंट पढ़ रहा हूं, इसके टेक्स्ट लिखे हुए पढ़ रहा हूं, गॉट इट। और इसका मतलब है उस वक्त हमारी आंख फोकस्ड ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। और अगर मैं चाहता हूं वो सामने आसमान में उड़ता हुआ पक्षी मेरे को क्लियर दिखे, तब ये सिलियरी मसल इस लेंस को बाहर की तरफ खींच देते हैं और ये सेंटर से पतला सा हो जाता है जब दूर की चीजें देखनी। तो इसका मतलब आंख हमारी फोकस्ड ऑन फार ऑब्जेक्ट्स। फार ऑब्जेक्ट्स, जैसे टीचर ने इसमें बुक की एग्जांपल ली, तो इसमें टीचर ने एग्जांपल ली पक्षियों की, बर्ड्स की। तो सिलियरी मसल एक ही लेंस की फोकल लेंथ को, पावर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। दबाया तो पावर को बढ़ा दिया, खींचा तो पावर को कम कर दिया। तो इंसान की आंख जरूरत के मुताबिक, उसकी इच्छा के मुताबिक दूर की चीज या पास की चीज पे फोकस हो सकती है, लेकिन एट ए टाइम एक ही चीज पर फोकस होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को हाथ की रेखाएं भी क्लियर दिखाई दें और इस फिंगर्स के गैप के बीच में से जो वो दूर उड़ता हुआ पक्षी है वो भी क्लियर दिखाई दे। दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर पक्षी क्लियर दिखेगा तो हाथ धुंधला हो जाएगा, अगर हाथ की रेखाएं क्लियर दिखेंगी तो पक्षी ब्लर्ड हो जाएगा। लेकिन एट ए टाइम एक चीज पे तो आंख फोकस कर सकती है। आंख की ये जो खूबी भगवान जी ने हमें दी है, इसका नाम, इस प्रॉपर्टी का नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा? एनीबॉडी? द प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन आई टू फोकस ऑन फार ऑब्जेक्ट्स और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। एंड नहीं लिखना कभी भी, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। Sir, accommodation. वेरी गुड, इट्स बी अकोमोडेशन। बहुत अच्छे, अकोमोडेशन। जिन बच्चों को आज का लेक्चर लगा के अच्छा लगा वो वेव करेंगे अपना हैंड। प्लीज वेव योर हैंड, गिव द फीडबैक। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट टाइम बच्चे हैं। आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है।
Good morning, children. Good Good morning. morning. ma'am. Good morning, ma'am. Morning. You are fresh. I started class 2 minutes late so that you can get fresh. अभी अभी आप साइंस पढ़ के चुके हो, ठीक है? You have absorbed इतनी important things आपने absorb किए हैं अभी, ठीक है? अभी कुछ और भी absorb करना है आपके माइंड में. You know, हमारी जो माइंड की जो स्ट्रेंथ होती है, हम कहते हैं ना कि माइंड में क्या क्या कितनी चीजें हम डालते हैं, हम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं पूरे दिन में, कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं, कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं. हमारी माइंड की जो एनर्जी होती है ना, दैट इज इनफाइनाइट. इसलिए कभी थकना नहीं है. ओके, अपने आप को बोलो कि यस आई कैन लर्न मोर, आई कैन डू मोर. बिकॉज हमारे जो, अगर आपने अब खुद को बोल दिया ना कि मैं थक गया, तो माइंड भी रेस्ट करने लग जाएगा. बिकॉज आप अपने माइंड को बोल रहे हो कि मैं थक गया, आई कैन नॉट डू मोर. ठीक है. इफ यू विल नॉट टेल योर माइंड एनीथिंग एंड यू विल से कि नो आई कैन डू मोर, आई कैन लर्न मोर, आई कैन राइट मोर, मेरा हाथ अभी थका नहीं है, मेरा माइंड अभी थका नहीं है, आई कैन थिंक मोर. तो हमारे माइंड की जो एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट होती है एक्चुअली. ठीक है. आर यू रेडी टू डू समथिंग न्यू, समथिंग अदर देन योर साइंस, अभी अभी जो पढ़ा? ठीक है. अभी हम न्यू कंसेप्ट जो हमने कल किया था परसेंटेज वाला, उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. स्टार्ट रोमिंग अराउंड. आपका माइंड जो है वो उसके आसपास अभी घूमना शुरू हो जाना चाहिए कि हमने परसेंटेज में क्या सीखा था. इंक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज, उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको. रेशियो के क्वेश्चंस हमने परसों किए थे. ठीक है. रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे. उसके बाद सेम क्वेश्चंस आपके बड़े क्वेश्चन में भी सेम चीजें अप्लाई होनी है. ठीक है. So believe that you have infinite energy to listen, to think, to do anything. Right? So let us start with a subjective question. First question we did last time. Abhi we are going to do second question. A number is increased by 20%. I'm reading second question. A number is increased by 20%. मैंने आपको बोला था जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं छोटी सी उसकी समरी बना लेते हैं अपनी फॉर्म में, अपनी राइटिंग में, सो दैट हमें क्वेश्चन और क्लियर हो जाए लिखते लिखते. नंबर इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट 20%. देन लिखा हुआ है. देन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले ये कंटिन्यूशन प्रोसेस है. एक नंबर की पहले बात हो रही है इंक्रीज बाय 20%, और उसके बाद हो रही है देन इट इज डिक्रीज, इट इज डिक्रीज बाय 20%. ठीक है. ये देन को अंडरलाइन करो और नंबर को अंडरलाइन करो. नंबर तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन, आपको पता ही है एक्स से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन, कोई नंबर सपोज करेंगे, और वो देन वर्ड हमें क्या बताएगा वो अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. Then is a continuous process of that. It's not that कि दोबारा हम x के पास जाएंगे. x ने कुछ काम किया, इंक्रीज हुआ 20%, देन जो इंक्रीज हुआ वो डिक्रीज हुआ आगे. पहले इंक्रीज हुआ उसके बाद डिक्रीज हुआ. ठीक है. फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. नेट इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है. ये आपकी समरी बन चुकी है, आपके जो है वो आपने निकाला. This is summary of your question. Anybody who knows this question, इसको आइडिया है थोड़ा, हाथ खड़े कर सकते हो. I don't say कि पूरा सॉल्व करोगे आप, थोड़ा सा आइडिया, शुरुआत कैसे करोगे. How will you start the question? Idea. Can you give me clue? Yeah, idea दो. Yes, yes. Very good. Ma'am, Yes. हाँ बोलो बोलो. Very good. A section. ma'am, we will let the number 100. Okay. And if it is increased by 20%, it will be 120. Very good. Then it will be decreased by 20%. Yes. 120 will be decreased by 20%. It will be 24. Okay. आपने सॉल्व कर लिया इसको? Ma'am, I am solving.
That's all. Okay, do it. Very good. जिसको आता है आप करो. Very good. She told in that way कि we are supposing it as 100. Okay. Suppose कर रहे हैं उसको. Other way, let the number be x. Let the number be x. जैसे आपको easy लगता है आप कर सकते हो, और जो आपको easy लगता है उसी को फॉलो करो. ठीक है. अब हमारी जो x की वैल्यू हमने ली है, लेट द नंबर बी x, उसको हम इंक्रीज करेंगे बाय 20%. ठीक है. 20% ऑफ x क्या होगा? 20% ऑफ x, परसेंट का हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है. ठीक है. इट इज इक्वल टू 20/100 into x. You know it is x by 5. x by 5 is 20% increase. ठीक है. तो आपके पास अभी न्यू नंबर क्या आया? इज इक्वल टू x प्लस x by 5. क्योंकि अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं. चिल्ड्रन हु आर डूइंग बाय 100 आल्सो, दे कीप डूइंग एंड मैच योर आंसर्स. ओके बेटा. न्यू नंबर जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कैसे करना है, आई एम टेलिंग यू द इजी वे आल्सो. ठीक है. न्यू नंबर हमारे पास क्या आया? x पुराने वाला था और न्यू नंबर हमारे पास आ गया बाय इंक्रीजिंग, इट हैज बिकम दिस. नाउ हमारे क्वेश्चन में क्या था? देन, कि पहले तो इंक्रीज हो चुका, अब जो न्यू नंबर बना है दैट इज डिक्रीजिंग बाय 20%. लिखो यहाँ पे 6x by 5 is decreasing by 20%. जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, यू कैन स्किप दिस लाइन. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी इसको लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है. तो डिक्रीजिंग बाय 20%. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो नंबर है उसमें से कुछ माइनस होगा. क्या माइनस होगा? 20% ऑफ 6x by 5. अंडरस्टैंड दिस स्टेप. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? न्यू नंबर की बात हो रही है. 6x by 5. पहले हमने ओरिजिनल नंबर x को इंक्रीज किया. न्यू नंबर केम आउट टू बी 6x by 5. ठीक है. और इसके बाद हमने जो न्यू नंबर आया उसको हमने 20% डिक्रीज किया. इट मींस माइनस 20% ऑफ 6x by 5. सॉल्व करो इसको. 20% ऑफ 6x by 5. आई एम डूइंग ओवर हियर. आप अपनी नोटबुक में करो अपने आप और चेक करो इसको. आई एम डूइंग कंसेप्चुअली. आपको कंसेप्ट अपना लगाना है. वेरी गुड. 6x by 5 माइनस क्या आ रहा है? Do it yourself. सॉल्व करो प्लीज इसको और चेक करो बोर्ड से. मैच करो. आर यू गेटिंग द सेम? प्लस माइनस करना आता है सबको? Who are getting 24 by 25x? Very good. Very good. किसी का नहीं आ रहा है? किसी को डाउट आ रहा है? आस्क मी. You have got this number after decreasing. अभी आपको दोनों जो पार्ट से क्वेश्चन की दैट इज ओवर. पहले आपने इंक्रीज किया, न्यू नंबर आया, फिर न्यू नंबर को आपने डिक्रीज किया, फिर से एक नया नंबर आया. राइट. तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? दैट वाज x. तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगी? इज इक्वल टू x माइनस 24 by 25x. ओरिजिनल नंबर जो पहले आपके पास था उससे डिक्रीज हुआ, और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? x इंटू
100%। यहां से आपका परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगा। ध्यान से करना इस स्टेप को, अपने आप ध्यान से करो। आपने बहुत क्वेश्चन किए हुए, यू नो कि पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो, न्यूमरेटर को, देन सॉल्व द होल डिनोमिनेटर। नीचे एक्स है आपके पास। अपने आप एक दूसरे की नोटबुक में मत देखो। किसी को डाउट हो रहे हैं उठ के पूछो कैसे करना है। I'm doing on this side, you can see, यहाँ पे दिख रहा है सबको। ऊपर आप एलसीएम ले रहे हो बेटे, ऊपर एलसीएम लिया आपने, ये आया आपका x/25 एंड नीचे आपके पास है x इंटू 100। अब इसको कैसे ट्रीट करना है? आपके पास है x/25 इंटू 1/x इंटू 100। ध्यान से देखो इसको क्या किया हमने, फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है, x/25। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, x/25 आपने पहला फ्रैक्शन लिखा इंटू 1/x इंटू 100%। व्हाट विल कम बेटा? 4%. 4%। जिन बच्चों ने 100 से शुरू किया था क्वेश्चन, दे आल्सो मैच द आंसर। आर यू गेटिंग द सेम आंसर बेटे? Yes. Yes. वेरी ठीक है। अब ये मेथड मैंने इसलिए करवाया है उन स्टूडेंट्स को जिनको 100 से नहीं सोचना आता कि 100 हमसे शुरू करेंगे, फिर उसको डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। और ये जो हमने कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है, या फिर सारे क्वेश्चंस में यही लगाया हुआ है कि कोई एक नंबर है, उसको डिक्रीज करेंगे तो माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे और न्यू वैल्यू लेंगे। ये आपका पुराना वाला मेथड सारा चलता है। ओके, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, यू कैन फॉलो एनी मेथड। Come to next question. Third is find the ratio of the following. This is simple question, but it is given to you क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक देखने वाली है। What is that? ध्यान से देखो बेटे क्वेश्चन को। It is find the ratio of 5 kilometer. Note down the question first. To 10 kilometer. 5 kilometer to 10 kilometer. प्लीज इसकी थोड़ी करेक्शन कर लो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देने का कुछ पर्पस था। पर्पस ये था कि इट इज 5 मीटर एक्चुअली। मीटर करो इसको, 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर। रेशियो निकालना तो सबको आता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर टू सी? 8B सेक्शन, लास्ट गर्ल्स, लास्ट बेंच। यस, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो भी आगे आके मेरे को ये बता दो कि व्हाट इज टू बी कॉशियस अबाउट। किसका हमने ध्यान रखना है इस चीज में, इस क्वेश्चन में? Firstly, we convert 1 kilometer into 10 kilometer into meters. Into meter. How many meters are there in 1 kilometer? I mean, 1 kilometer, there are 1000 meters. 1000। क्या डाउट नहीं होना चाहिए आपको? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 1000 मीटर। तो इसको प्लीज इसको करो। वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन है, सामने सामने हो जाएगा। प्लीज डू इट, वेरी गुड। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि ताकि आपको याद रहे। प्लीज सिट डाउन बेटा, थैंक यू, कि आपने इसकी कन्वर्जन करनी है। मैनी स्टूडेंट दे डोंट सी द यूनिट। ओके, तो आपके पास क्या आएगा, 5 मीटर, यू आर चेंजिंग द यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल, 10 इंटू 1000 फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मीटर मीटर बन गया आपका। अभी जब आपका रेशियो का क्वेश्चन आएगा, रेशियो का जो आंसर आएगा, इट कंटेन्स नो यूनिट, नहीं आएगी। That is 1:2000. 1:2000. This is very small question. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि एक तो आपने किया चेंज द यूनिट, पहला पॉइंट लिख लो इसको। इन बच्चों को डाउट लग रहा है,
जिनको तो बहुत कंफर्म है कि यस वी नो हाउ टू डू, पहला आपका होना चाहिए चेंज द यूनिट। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ना इसका रेशियो वाले क्वेश्चंस, ये 7th क्लास से आप करते आ रहे हो, बट अभी 8th क्लास में मैं देखती हूँ काफी बच्चे अपना मिस्टेक करते हैं इसमें। नेक्स्ट थिंग इज यूनिट करने के बाद राइट आंसर इन रेशियो। यू हैव इनफाइनाइट एनर्जी। ये नहीं है कि कई बच्चे मैंने देखा है उसको 1/2000 करके चलो जी निकल गया आंसर, स्टॉप हियर, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट बिकम लेजी इन राइटिंग। आपसे रेशियो पूछी गई है तो रेशियो में ही आंसर लिखो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज 50 पैसे टू ₹5, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम 1:10. 1:10. ठीक है, वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, Yes, 1:10. वेरी गुड। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है सो दैट यू रिमेम्बर कि हमने इसकी यूनिट चेंज करनी है, और सेकेंडली आंसर रेशियो में एक्सप्रेस करना है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Ramesh had ₹600 left after spending 75% of his money. Left is given to you. Summary. Start writing the summary. Left money. कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही लिखना शुरू कर, आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन लिखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन मैनी टाइम्स वो गलत होता है, हो जाता है, क्योंकि यू आर डूइंग इन हरी। ओके, तो आपने जल्दी में नहीं करना। लेफ्ट मनी आपको दी हुई है, स्पेंडिंग परसेंटेज दी हुई है, स्पेंडिंग परसेंटेज, इट इज नॉट मनी, इट इज परसेंटेज, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि हमें किसकी परसेंटेज दी हुई है, जिसकी परसेंटेज गिवन है उसका नंबर चाहिए। ओके, नंबर नहीं आएगा तो हमारी कैलकुलेशन नहीं होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगनिंग, मनी ही हैड, शुरुआत में उसके पास कितनी मनी थी, दैट इज द थिंग। ओके, किसको आता है क्वेश्चन, हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ट्राई करो, 2 बार पढ़ के ट्राई करो जरा इसको। यूज योर ओन थॉट प्रोसेस। वेरी गुड। सबसे पहले बेटा इन क्वेश्चंस में जब भी कोई चीज आपको निकालनी होती है, लेट ही हैड ₹X, एक्सपोज कर लो, सपोज कर लो उसके पास X रुपीज थे, ठीक है। फिर उसने क्या किया, लेफ्ट मनी उसके पास कितनी थी 600, और स्पेंड कितनी की उसने 75%। स्पेंट मनी, स्पेंट मनी कितनी होगी, अभी हमने ये तो परसेंटेज पता है हमें। कैन यू फाइंड द नंबर, हाउ मच ही स्पेंट ऑन 75% जो आपको दी हुई है, कितनी उसने स्पेंड की है, व्हाट वुड यू राइट, 75% ऑफ X, यही लिखोगे ना। पूरी टोटल जो उसके पास मनी थी उसमें से उसने 75% खर्च कर लिया। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, 75/100 इंटू X, काट लो इसको, 3/4X। कितनी मनी आ गई आपके पास, कितने रुपीज उसने स्पेंड की, आंसर X की फॉर्म में ही आएगा क्योंकि टोटल मनी हमारे पास X थी। I'm done. डन, वेरी गुड। कितना आ रहा है आंसर बेटा, 2400. 2400। किसका आ रहा है, हाथ खड़े करो। Wonderful, wonderful. You know this is, it means you have done it. 24 is correct now. Yes. It is correct one. ठीक है ये आंसर,
ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, किसी ने कुछ पूछना है? बिकॉज मेनी चिल्ड्रन हैव डन इट। मैं लास्ट स्टेप लिख रही हूँ, जिनको नहीं आता, एक आपके पास स्पेंट मनी आ चुकी है, आपके पास लेफ्ट मनी थी, ठीक है। तो लेफ्ट मनी का क्या मतलब हुआ कि एक्स में से आपने कितने स्पेंड कर लिए, एक्स में से आपने 3/4 एक्स स्पेंड कर लिए, तो बाकी कितने बचे 600। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी है, जब इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आएगी 2400। हिंट लिख लो, जिनको नहीं आता प्लीज राइट द हिंट एंड सॉल्व एट होम। ओके, जब भी आपको ऐसे मनी वाला क्वेश्चन आता है ना, स्पेंट, लेफ्ट, बॉट, ठीक है, उसमें यही स्टोरी तो यही रहेगी ना, कितनी मनी आपके पास थी, कितनी आपने खर्च की है, कितनी बच गई, वो तो ऑर्डर तो यही रहेगा इसका, ठीक है। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ न्यू क्वेश्चन की कुछ नया आ गया, कुछ हमने ऐसा किया नहीं हुआ, डोंट, पहले तो उसको फियर को पहले माइंड से निकाल। आपने बहुत प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, तो नए क्वेश्चन को आपको पता ऑटोमेटिकली 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा। लेट अस डू लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a scooter was bought for rupees 4200, its value depreciated at the rate of 8% per annum, find the value after 1 year। क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़ो, उसके बाद मुझे ये बताओ कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, किस चीज की बात हो रही है इसमें। आपने पूरा चैप्टर किया हुआ है क्लास में, है ना? 2 बार क्वेश्चन पढ़ के मेरे को बताओ। कई बच्चों ने कर भी लिया है या A section, A section first bench, have you done बेटा? Yes. हाँ, प्लीज मेरे को आगे आके बताओ, माइक के पास आओ एंड टेल मी हाउ हैव यू डन इट, क्या मेथड अप्लाई किया है और आंसर क्या आ रहा है। थोड़ी समरी बताओ मेरे को, टेल मी द समरी, हाउ हैव यू डन। Ma'am, I have not done yet. Okay, from A section who was telling I have done? You can say. Ma'am, 8% of 42,000. I'm done. Ma'am, done. Very good, very good, उसको बताने दो, listen to her also, very good, Find 8% of 42,000. very good, what is coming then? 3,360. 8% of 42,000 you did, right? You are getting it? 3,360. 3,360 is the answer. Okay, then what you did next? Find its value after 1 year. 42,000 plus 3,360. No, bache, the value depreciated. Depreciated means less. ओके, डेप्रिशिएटेड जो वर्ड है उसका मतलब डिप्रेशन, जैसे कहते हैं ना डिप्रेशन, डिक्रीज, ये उसका वर्ड है। तो आपको प्लस नहीं करना, माइनस करना है। किस किसने प्लस किया, हाथ खड़े करो। हु हैव एडेड इट? ओके, बी सेक्शन से चिल्ड्रन हु वर सेइंग कि हमने आंसर निकाल दिया है। आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? लेट मी सी हाउ हैव यू डन। मैं 3,360. दैट इज ओके, वो तो आ गया आपका। दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। लेट अस डू इट। करो इसको, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, you found it to be depreciation मतलब, पहले तो इसका मतलब लिख लो, डिक्रीज। आपको पता होना चाहिए जब भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू का नेम आता है, इसका मतलब होता है कि वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो अभी डिक्रीज जो हुई है वो कितनी हुई है? 8% ऑफ 42,000। ये आपने निकाल लिया आंसर। यू हैव फाउंड दिस ऑलरेडी। आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये 0 कैंसिल किया आपने, काटा, लोएस्ट टर्म में किया, दैट इज परफेक्ट। 8% ऑफ दिस इज कमिंग आउट टू बी 3,360 इज करेक्ट आंसर। ये क्या निकला है आपका?
ये तो निकले कि आपकी कितनी डेप्रिसिएशन हुई, कितना कम हुआ प्राइस। ठीक है, अब नाउ दे आर आस्किंग फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज मतलब पहले 42,000 था और अभी कम हो चुका है इसका रेट, तो आपको माइनस करके आंसर बताना। ओके, अगर आप प्लस करोगे तो आपका आधा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, because there are two parts of this question. First is you are finding only percentage, then you are finding increase or decrease. प्राइस इंक्रीज हुए तो एडअप हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल में से ही माइनस हो जाएगा। व्हाट आर यू गेटिंग? 38,640. नाउ इट इज फाइन, बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंड इन डिटेल, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर केस स्टडी बेटा। केस स्टडी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इट इज गिवन टू यू, a parking lot has a capacity of 450 cars to park at a time. 450 cars total can be parked. On Tuesday 300 cars were parked. Particular day था उस दिन 300। टोटल पार्किंग स्पेस कितनी है? टोटल कार्स, अब टोटल कार्स को आप लिख रहे हो यहाँ पे, आपको ये पता चल रहा है कि एक पार्किंग स्पेस में कितनी पार्क की जा सकती है कार। ठीक है, ट्यूसडे को कितनी पार्क हुई? ट्यूसडे हाउ मच? 300। शॉर्ट फॉर्म में हम अपनी समरी लिख रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं हम। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the ratio of parked cars to the total capacity of the parking lot? पार्क्ड कार्स आपसे पूछ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो ट्यूसडे के बारे में ही पूछ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 300 by 450. You will be writing it as ratio of parked cars to the total capacity. कितनी आ रही है बेटा? 2:3. Ratio 3. Very good. Don't tell me 2/3. It is 2:3 क्योंकि आपसे रेशियो पूछी गई थी। Write the percentage of parked cars on Tuesday. Ratio of parked cars. किसकी परसेंटेज निकालेंगे? Which number? 2/3. आपको रेशियो पता चल चुकी है, पार्क्ड कार्स की रेशियो पता चल चुकी है, 2:3 है, तो उसी की ही परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, आपका टाइम अप हो रहा है, फटाफट से इसकी हिंट लिख लो। प्लीज सॉल्व इट एट होम। जितना भी अगर फ्रैक्शन में आएगा तो यू कैन लीव इन फ्रैक्शन ओनली, डजंट मैटर। I'm done. हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है? 66.6%. Yes. 6.6%। बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं कि तीनों में से एक जना सॉल्व कर रहे हैं और तीनों मेरे को आंसर बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। चलो ठीक है, वेरी गुड। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What I'm asking, if you're doing together, it is, you should have knowledge actually. If you're doing in hurry, it doesn't matter. Okay. I'm done. Beta, if the car parked on Wednesday was 400, then what is the percentage of car parked on Wednesday? So simple. आंसर नहीं बताना मेरे को, बताओ आपने किया क्या है इसमें। Don't tell me answer. Number of cars parked on Wednesday 400 थे, तो what is the percentage of 400 over 450 Into 100. into 100. 100%. जिसको नहीं आया वो भी हाथ खड़ा कर दो, वो आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अदर सेक्शन, हाथ खड़े करो, सबको समझ आ गया? वेडनेसडे को नंबर आपका चेंज हो गया, 400 कार्स आ गई है, तो 400 by 450 into 100% आपका निकल जाएगा, वट एवर यू आर फाइंडिंग। ठीक है, हाउ मेनी मोर कार कुड बी पार्क्ड ऑन ट्यूसडे टू मेक द पार्किंग फुल? 150.
150 150 बाय क्या किया आपने? 450 minus 300. 450 300 minus 300 वंडरफुल वंडरफुल 450 हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो ऑल राइट बेटे, नेक्स्ट टाइम विल डू नेक्स्ट पार्ट। इसका जो जीएसटी एंड ऑल जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Ma'am. बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय बाय।